वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दुर्ग, कोर्स बी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 4th ईयर 7th सेमेस्टर स्टूडेंट। सब्जेक्ट ऑन नेटवर्क प्रोग्रामिंग। माई सेल्फ नीतीश कुमार चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। सो टुडेज अवर नेक्स्ट टॉपिक, वेब सर्विसेज। दिस इज अ यूनिट 4 and first of all, what is web services? In addition to a new protocol, Stack Web 2.x introduced many other new features and services. So these new features expand the capabilities of wireless devices. मतलब ये जो वेब सर्विसेज में क्या होते हैं कि जो फीचर्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, वायरलेस डिवाइसेस के जो कैपेबिलिटी होते हैं उसको और एक्सपांड करने की कोशिश किया जाता है ताकि और अच्छे से हमको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। एंड अलाउ डेवलपर्स टू क्रिएट मोर यूजफुल एप्लीकेशंस, और जो डेवलपर्स रहते हैं उसको अलाउ करते हैं कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल एप्लीकेशन डेवलप कर सकें एंड सर्विसेज। The following is a summary of features of interest. So, next, first feature is a web push. Web means wireless application protocol push. So, this is the first feature of web services. So, wireless application protocol push enables enterprises to initiate the sending of information ऑन द सर्वर यूजिंग अ पुश प्रॉक्सी। तो ये पुश प्रॉक्सी का यूज़ करके इंफॉर्मेशन सेंड करने का काम करता है। एंड दिस कैपेबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस इन वेब 1.2। ये 1.2 वेब में क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, बट हैज़ बीन एनहांस्ड इन वेब 2.x। एप्लीकेशंस that require updates based on external information are particularly suited for using web push. So example include various forms of messaging application, stock updates, airline departure and arrival updates. So these are the examples of web push. And traffic information. Before web push was introduced, the wireless user was required to poll the server for updates information, wasting both times and bandwidth. So this is a service of web push. So next service is user agent profile. User agent profiles means UA proof. So the UA proof means user agent profile enables a server to obtain information. ये इंफॉर्मेशन क्या करता है, सर्वर से ऑब्टेन करता है और उसको इनेबल करता है अबाउट द क्लाइंट मेकिंग द रिक्वेस्ट। मतलब जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है किसी भी सर्विस को सर्वर से, तो उस सर्विस को क्या करता है, सर्वर प्रोवाइड करता है। इन वेब 2.x इट इज़ बेस्ड ऑन द कंपोजिट कैपेबिलिटीज़। ये जो होता है वेब 2.x है वो बेस्ड होता है कंपोजिट कैपेबिलिटीज़ और प्रेफरेंस प्रोफाइल्स means CC means composite capabilities and preference profile means PP. Specification as defined by the web W3C. It works by sending information in the request object, allowing wireless servers to adapt the information being sent according to the client device making the request. So this is features user agent profile. So next our features, external functionality interface. So what is external functionality interface features? So these features allow the wireless application protocol applications within the WAE to the communicate with external applications, enabling other applications to extend the capabilities of web application, similar to plugins for desktop browsers. So this is a wireless telephonic
एप्लीकेशन। तो वायरलेस टेलीफोनी जो एप्लीकेशंस होते हैं उसमें क्या होगा कि जैसे कि वायरलेस टेलीफोन होते हैं उसमें हेलो माई चेक इस तरह से वॉकी टॉकी जो रहते हैं ना, वो उसी तरह का वर्क करता है, एक तरह से वायरलेस टेलीफोनी एप्लीकेशंस है। तो इसमें किसी मीडियम की ज़रूरत, मीडियम तो रहेगा बट वायर्ड नहीं रहेंगे, वो क्या होगा वायरलेस रहेगा और डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड रहेंगे। उसमें कॉल्स होल्ड में भी कर सकते हो, ठीक है, कॉल पिक भी कर सकते हो। वो एनी टाइम क्या रहेगा, वो वायरलेस से कनेक्टेड रहेगा और कभी भी आप उस पर बात कर सकते हो। इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, जैसे कि वॉकी टॉकी आपने देखा होगा। सो दिस इज अ वॉकी टॉकी। द वायरलेस टेलीफोनी application allows wireless application protocol applications to control various telephony applications such as making calls, make calls कर सकते हैं, answering calls, आंसर दे सकते हैं कॉल का, पुटिंग कॉल्स ऑन होल्ड, आप होल्ड को कॉल को होल्ड पे कर सकते हो, एंड फॉरवर्डिंग देम, उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो आप। इट अलाउज वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल वायरलेस टेलीफोनी एप्लीकेशन इनेबल्ड cell phones to have integrated voice and data services. So these features are wireless telephony application WTA. Next, persistent storage interface. So this is the important features, persistent storage interface. So wireless application protocol 2.x introduces a new storage service with a well-defined interface to store data locally on the device. The interface defines ways to organize, access, store and retrieve data. So persistent storage interface में क्या होता है, इसमें ये जो इंटरफेस रहता है वो अलग अलग डिफाइन करते हैं, जैसे कि वे टू ऑर्गेनाइज, उसको एक्सेस करना, डेटा स्टोर करना, एंड डेटा जो है उसको रिट्रीव करना, पुनः प्राप्त करना। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं किसमें, परसिस्टेंट स्टोरेज इंटरफेस में। सो नेक्स्ट अवर फीचर्स, डेटा सिंक्रोनाइजेशन. So first of all, what is data synchronization? So for data synchronization, WAP 2.x has adopted the synchronous SYNC synchronous ML solution as outlined in chapter 10. chapter 10 में आउटलाइन दिया हुआ है. So enterprise integration through synchronization ML provides an XML extensible markup language based protocol होता है for synchronizing data over both WSP and HTTP. So this is the data synchronization. So our next feature is a multimedia messaging service, MMS. So multimedia messaging service is the framework, एक framework है for rich content messaging. rich content messaging के लिए क्या है, framework है कि going beyond what is possible for SMS, MMS can be used to transmit multimedia content such as pictures and videos. In addition, it can work with wireless application protocol, push and user agent proof to send message adapted specifically for the target client devices. So this is a multimedia messaging services, short में MMS बोलेंगे. So our next topic is a वेब डेटाबेस. वेब डेटाबेस से समझ में आ रहा है जितने भी वेबसाइट वेब बेस्ड होते हैं, सारे एप्लीकेशंस, उसका डेटा जो है वो स्टोर होता है वेब पर, ठीक है, उसी को डेटाबेस कहा जाता है जहाँ पे डेटा स्टोरेज रहते हैं वेब के. सो वेब डेटाबेस में क्या है डेफिनेशन, अ वेब डेटाबेस is an organized listing of web pages. So जो वेब डेटाबेस रहता है वो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजिंग रहता है किसका, लिस्टिंग ऑफ वेब पेजेस. जितने भी वेब पेजेस रहते हैं उसका क्या होता है, एक लिस्टिंग रहता है और उसका ऑर्गेनाइज किया जाता है.
एक सिंपल वे में। इट्स लाइक द कार्ड कैटलॉग दैट यू माइट फाइंड इन द लाइब्रेरी। द डेटाबेस होल्ड्स अ surrogate means or selected pieces like the title, the heading, etc. for each web page. The creation of these surrogate is called indexing. और ये जो surrogate होता है that is called indexing बोलते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप कुछ सर्च करते हैं वेबसाइट में, जैसे गूगल ओपन किए, गूगल में आप क्या किए, सर्च किए, तो क्या होता है वो एक इंडेक्सिंग बनते जाता है, ठीक है, ताकि जब आप दोबारा उस चीज़ को सर्च करोगे तो आपको रिकमेंड करते जाता है। जैसे आपने हेलो लिखा तो हेलो के बाद वो जितने भी हेलो से वर्ड से रिलेटेड जितने भी लिस्टिंग हुआ रहेंगे, हेलो गूगल, हेलो माई चेक, जो भी रहेगा वो आपका लिस्टिंग आ जाएगा, तो वो इंडेक्सिंग के थ्रू आता है। और इसी इंडेक्सिंग को क्या बोलते हैं, सरोगेट बोलते हैं। एंड ईच वेब डेटाबेस डज इट इज़ अ डिफरेंट वे, अलग वे में होता है। सो वेब डेटाबेसेस होल्ड सरोगेट्स फॉर एनीथिंग फ्रॉम 1 to 30 मिलियन वेब पेजेस। कहीं से भी आप कर सकते हो होल्ड, जो 1 to 30 मिलियन वेब पेजेस होते हैं। द प्रोग्राम ऑल्सो हैज़ अ सर्च इंटरफेस विच इज़ अ बॉक्स यू टाइप words into, like an Ultra Vista or Lycos, or the list of directories you pick from, like in Yahoo, जैसे कि Yahoo में होता है। Thus each web database has a different indexing method। और हर एक डेटाबेस क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि एक वेब डेटाबेस है तो एक ही ने क्या रहेगा, उसका इंडेक्सिंग मेथड रहेगा। डिफरेंट इंडेक्सिंग मेथड्स होते हैं हर एक वेब पेजेस के। तो ये चीज़ होता है आपके वेब पेजेस में, ज़रूरी नहीं है गूगल जो इंडेक्सिंग यूज़ कर रहा है, इंडेक्सिंग मेथड, वही याहू भी कर रहा होगा और दूसरे वेब पेजेस कर रहे होंगे, ज़रूरी नहीं है। अलग अलग डिफरेंट इंडेक्सिंग मेथड होते हैं। एंड डिफरेंट सर्च इंटरफेस, और डिफरेंट सर्च इंटरफेस रहते हैं। तो ये तो था सिंपल आपके वेब डेटाबेस। आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर होगा, वेब सर्विसेज और वेब डेटाबेस क्या होते हैं। इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।